response to and means of creating value that satisfies human needs, embodies collective knowledge, values, visions. Response to and means of creating value that satisfies human needs. The purpose of creating an organization is to satisfy human needs. What are the human needs? Need of food, need of basic needs such as clothing, and other thing which is relevant, which satisfy the human needs. Organizations' main objective is to create a product that values human needs, that create a value which satisfies human needs. Basically, organizations organization's main objective is to satisfy human needs and earn profit. Because earning profit is primary goal of the business organization, but it is primarily linked with the satisfaction of human needs or human want. If organization satisfied human needs or wants, resultantly it will generate profit, or satisfaction of human needs will materialize in the shape of profit for the business organizations. Embodies collective knowledge, values, and visions. Because these organizations have a collective knowledge, it is not about individual, but it is about system. We are talking about a system that is a complex, that is composed of many factors, human factors, non-human factors, all are involved in the composition of organization. Organization involved with the creation of values and determining the vision, what organization want to achieve, where it want to lead. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का ये जो उसूल है कि एक ऐसी चीज प्रोड्यूस करना जिसको हमने सोसाइटी में देना है, लोगों को सर्व करना है, जिससे उनके जो भी ज़रूरियात हैं वो पूरी होंगे। जब वो ज़रूरियात पूरी होंगे तो वो एक शेप ऑफ रिटर्न में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाता है, जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज इनटू अ कॉमन टास्क। पीटर ड्रकर जो एक मैनेजमेंट थियरिस्ट हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट, मैनेजमेंट साइंटिस्ट भी कह सकते हैं आप उसे, वो कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज इनटू कॉमन टास्क। ऑर्गेनाइजेशन में हर बंदा अपने लेवल, अपने नेचर का काम करता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्सपीरियंस, according to the qualification and any other specialized training which a person received for performing that specialized task. When they come into organization, they become shape of common task. Common task is से मुराद ये है कि सबका एक ही मकसद हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना, जिसमें फाइनेंस सेक्शन का भी एक अपना कंट्रीब्यूशन है, जिसमें इंजीनियरिंग सेक्शन का भी अपना कंट्रीब्यूशन है, उसके अलावा आपके ह्यूमन रिसोर्स सेक्शन का अपना कंट्रीब्यूशन है, और ऑपरेशंस, जनरल ऑपरेशंस सेक्शन है जो, या उसके अलावा मार्केटिंग सेक्शन है। ये सारे मिल के ना ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को अचीव करते हैं। हर किसी का अपना एक स्पेशलाइज्ड टास्क है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, और स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है। ये सारी स्पेशलाइजेशन वो कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू कॉमन टास्क, दैट इज द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। Human creation whose operations and products are result of ways we govern them
and of the social, institutional, political structures within which they operate, their environment. This is all about the human organizational environment, in which human creations, whose operations and products are result of ways we govern them, and of the social, institutional, and political structures within which they operate. There are two, we're talking about the environment in which organization, internal environment, in which human, in which people who are working, and other, the setup or system that is that is commonly known as external, in which organization operate. That is a social, institutional, and political structure. Organizations are both product of these structures and destabilizers of these structures. जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें से ये जो दो चीजें बयान की गई हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का सही कंपोज्ड हैं. इनके जो कंपोजिशन है उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंटल का रोल होता है. ये स्ट्रक्चर इनके डीस्टेबलाइजेशन के लिए भी का सबब भी बन सकते हैं, डीस्टेबलाइजर भी हो सकते हैं और स्टेबलाइजर भी हो सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशंस को कहीं पे कहीं अपॉर्चुनिटीज की बात मैंने जो की थी पहले, अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगे इसी इन्वायरमेंट से, इंटरनल और एक्सटर्नल से, और कहीं इसी इन्वायरमेंट से उनको थ्रेट्स भी नजर आएंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के फेल होने का खदशा ज्यादा होता है. ट्रेंड्स एंड टेंशंस इन कॉन्टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशंस. क्या क्या ट्रेंड्स और टेंशंस चल रहे हैं? एक चल रहा है स्मॉल एंड फ्लेक्सिबल वर्सेस लार्ज एंड वर्टिकल इंटीग्रेटेड. एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो छोटे पैमाने पर हैं और फ्लेक्सिबल हैं. फ्लेक्सिबल से मुराद है उनके ऑपरेशंस को आप किसी भी टाइम कन्वर्ट करके चेंज कर सकते हैं इजीली विदाउट एनी लॉस और डैमेज. दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हुए वो जो लार्ज हैं एंड वर्टिकल इंटीग्रेटेड, जिनका सिस्टम से पूरा एक मैकेनिज्म जुड़ा हुआ है, जिनको आप इजीली इतना इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी दूसरे ऑपरेशंस में, जिसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो उससे लॉसेस भी बढ़ते हैं, जिससे फेलियर के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस का जो इमेज है वो भी खराब हो सकता है. ये सारी चीज़ें जो कंपैरिजन में चलती हैं वो स्मॉल, फ्लेक्सिबल एंड लार्ज एंड वर्टिकली इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं. सेकंड, टेक्नोलॉजी एज अ वर्क सेवर वर्सेस वर्क प्रोड्यूसर्स. अब दो राय हैं. एक ट्रेंड चल रहा है कि टेक्नोलॉजी इज बेसिकली अ वर्क सेवर बिकॉज it reduces the burden of workforce in the business organizations. On the other hand, it is claimed, it is considered that it is a work producer. लेकिन टेक्नोलॉजी जो है उससे ये भी हुआ है कि जितना ज़्यादा काम जो है ना वर्कर का टेक्नोलॉजी के आने से बढ़ा है, टेक्नोलॉजी के रोल से बढ़ा है, जिसकी वजह से वर्कर्स की जो प्रोडक्शन है, नीड है ऑर्गेनाइजेशन में, वो और ज्यादा बेहतर हुई. दो अलग अलग नेटवर्क्स एंड हायरार्कीज हैं. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ये या तो नेटवर्क्स के साथ काम करते हैं या फिर हायरार्कीज हैं. नेटवर्क से मुराद एक जगह एक कैंपस है, दूसरी जगह कैंपस है, ठीक है ना, एक जगह सब ऑफिस है, दूसरी जगह सब ऑफिस बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं या इन शेप ऑफ फ्रेंचाइज हैं, ठीक है ना, ये सारे नेटवर्क्स कहलाते हैं. दूसरा होता है हायरार्की सिस्टम. ऑर्गेनाइजेशन एक ही है टॉप टू बॉटम, वो डिवाइडेड है इनटू वेरियस कैटेगरीज ऑफ वर्कफोर्स, जिसमें टॉप लेवल एक अलग मैनेजमेंट है, मिडल एक अलग मैनेजमेंट है, और उसके अलावा आपका लोअर एंड बॉटम मैनेजमेंट अलग हायरार्की है सिस्टम का. टॉप मैनेजमेंट एक्चुअली engage in the formulation of policies, procedure, and
एंड ऑब्जेक्टिव्स। मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट का काम है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज प्रोसीजर्स designed by the top management of the business organizations. Knowledge worker versus administered as a powerful. Another trend that is actually running, that is fact, that is fashion, that knowledge workers are more important than the powerful administrators. On the other hand, another view is that powerful administrator is actually a powerful member of the business organization which runs the operations of the business according to its capabilities, capacities, knowledge, skill, education. On the other hand, we are talking about knowledge workers, those who are trained, experienced, well-educated workers, have a sufficient knowledge and experience of business operations. They run efficiently business operations of the business organizations or non-business organization or simply organization. Manufacturing versus service. Another approach that is concerned with the production of goods. That organization trained towards manufacturing of goods is very important rather than service. But service nowadays it is a fashion that service is a very important concept in the business organization and business environment. Because service delivery, nature of services delivered are very important part of the business organization because majority of the operations involved in the delivery of services. एक वो जो कारखाने में बैठ के कोई चीज प्रोड्यूस करें और चीज बनाए हमें मार्केट में भेजें। मैन्युफैक्चरिंग एक कॉन्सेप्ट ये है कि उसको फरोग देना चाहिए, वो बहुत ही जरूरी है। दूसरे कह रहे नहीं कि ये जिस तरह के सूरत हाल बने इसमें सर्विस डिलीवरी का रोल इम्पोर्टेंट है, सर्विस प्रोफेशंस का रोल इम्पोर्टेंट है और वो रोल दिन ब दिन बढ़ रहा है, आगे जा रहा है। इसलिए फोकस ये है कि वो सर्विस डिलीवरी और सर्विस देखने चाहिए। लेबर शॉर्टेज वर्सेस लेबर सर्कल्स। एक कॉन्सेप्ट ये है कि लेबर की शॉर्टेज जो है ना वो ज्यादा हो रही है दिन ब दिन। दूसरा कॉन्सेप्ट जो ट्रेंड है वो ये है कि नहीं, लेबर दिन ब दिन सरप्लस होती जा रही है, इट्स मल्टीप्लाइंग ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ well educated professional by the universities, colleges and professional academic associations. लेबर सरप्लस इमरान के जितनी डिमांड है मार्केट में उससे ज्यादा लेबर की अवेलेबिलिटी है। लेबर शॉर्टेज का मकसद ये है कि जितनी भी मार्केट में लेबर की डिमांड है उससे कम लेबर मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी वजह से मार्केट में लेबर की इंपॉर्टेंस में फर्क आता है। अगर लेबर शॉर्टेज होगी तो लेबर की डिमांड ज्यादा होगी, अगर लेबर सरप्लस है तो लेबर की डिमांड कम होगी और उसके वेजेस कंप्रोमाइज हो जाएंगे। Another concept of production of high versus low wage service jobs. एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें प्रोडक्शन ऑफ हाई वेज सर्विस होनी चाहिए या लो वेज सर्विस होनी चाहिए। इसका ट्रेंड चल रहा है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए, हाई वेज इंपॉर्टेंट है या लो वेज इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आते हैं जॉब as a package of specific duties in the specific time period versus job as a flexible in duties, time and space.
दूसरा ये आता है कि जॉब एज ए पैकेज ऑफ स्पेसिफिक ड्यूटीज इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जॉब जो है वो एक ऐसा काम है जिसके लिए हर चीज मुख्तस होना चाहिए कि कितने टाइम का होना चाहिए, क्या क्या उसमें तय होना चाहिए कि कौन से किस टाइम होगा और कैसे होगा। उसके साथ साथ जॉब एज ए फ्लेक्सिबल इन ड्यूटीज टाइम एंड स्पेस। दूसरा ये है कि जॉब जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और उसके लिए टाइम ड्यूरेशन डिटरमिनेट होना चाहिए और वो उसमें स्पेस भी होनी चाहिए और गैप आना चाहिए ताकि वर्कर्स को कोई परेशानी नहीं हो, उनकी हेल्थ पे इफेक्ट नहीं हो, उनके सोशल लाइफ पे इफेक्ट ना हो और चीज़ें जो हैं इससे डैमेज ना हो, उसकी जो पर्सनल जो है ना लाइफ है ऑफ वर्कर। वो need for organizational learning versus poor memory